members, and my dear friends. Let us reconvene with renewed energy as we continue to celebrate the power and progress and voices of women shaping a brighter future for all. We have explored the power, resilience, and impact of women in various spheres in our previous sessions. Today, in our post lunch session, we will be exploring two deeply interconnected topics: how environmental factors, specifically pesticide pollution, impact women's health, and the importance of overall well being in women's empowerment. So let's dive right in. Our first speaker needs no introduction when it comes to environmental advocacy and research. Dr. Mamta Sharma Ma'am, an associate professor of environmental science at Rajrishi Government Autonomous College, Alwar, has spent years studying the intricate relationship between pollution and public health. Today, she will be enlightening us on pesticide pollution and women's health, a topic of growing concern. With increasing exposure to harmful chemicals in food and agriculture, women face unique health risks, and it's high time we address them. Even though she is joining us virtually, we are honored to have her here with us today. We extend a warm welcome to Dr. Mamta Sharma ma'am, as we are eager to hear your insights. Over to you, ma'am. Hello everyone, am I audible? Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Thank Yes, you. ma'am. Your voice is very clear. Thank you so much. First of all, I wish you all a very good afternoon at this beautiful sunny Sunday. Secondly, I wish all the women who are present here a very happy Women's Day. So, basically, I've been introduced and I'm honored to be here. Thank you so much for the introduction. But one thing I wish all of you to know about me. Basically, I'm an environmental toxicologist. That means मैं एक विश्व वैज्ञानिक हूँ. विश्व वैज्ञानिक वो लोग होते हैं जो पर्यावरण में जो भी विष किसी भी तरह से ऐड होता है उसकी स्टडी करते हैं, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और फिर उसे सरकार को हम लिखते हैं कि आप कोई मेजर्स बनाइए, कुछ लेजिस्लेटिव एक्शंस लीजिए. तो बेसिकली हम लोगों का काम है विष के बारे में पढ़ना, जिसको जहर विज्ञान या विष विज्ञान भी कहते हैं. So today I am going to talk about pesticide pollution and survival of the human health. See, I will not write here women health because survival is important to everyone, to man, women, children and all the biodiversity around us. Women can't survive alone. Men can't survive alone. Animals can't survive alone. So it is a broader topic, but definitely my emphasis will be on the women health because before I start my presentation, I want to tell you that women are more sensitive, more prone to pesticides than men. So let me share my slides with you. Are my slides visible? Yes, ma'am. Okay, thank you so much. So the topic of my presentation is pesticide pollution, a threat to avian diversity and human health. So what I want to ask all of you is, I will start with a question. First of all, how we go to the market and buy the vegetables. हम सब बाज़ार जाते हैं और हम सब लोग वहाँ पर अपनी सब्जियाँ खरीदते हैं. How do we do that? According to me, if I go to the market, I will buy a very beautiful red tomato. I will buy a very beautiful shining red apple. I will look for a very healthy long green ladyfingers, right? Or I will buy some very charming orangish carrots, right? But I will just take you not more. I will take you to just 20 years back or maybe just 10 years back, where the vegetables were so good looking.
क्या आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले इतने खूबसूरत और इतने बड़े वेजिटेबल्स हमें मार्केट में मिलते थे? इतने सुंदर लाल एप्पल मिलते थे? इतनी सफ़ेद गोभी मिलती थी? या many of you might be doing kitchen gardening like I do for myself. I hardly get any red tomatoes, yaar. Hardly I get very variegated kind of tomatoes and all. I hardly get very small size potatoes, and market I get this size of potatoes. So welcome to the world of pesticide. आपका कीटनाशकों की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। जब भी कोई फसल तैयार होने लगती है और उसमें फूल आते हैं तो उस टाइम किसान एक पेस्टिसाइड होता है जिसे हम कॉस्मेटिक पेस्टिसाइड्स कहते हैं, जिसे हम पायरेथ्रॉइड्स भी कहते हैं, उनको वो स्प्रे करते हैं उस फील्ड में और तो रिजल्ट होता है आपके सामने इतने खूबसूरत बड़े बड़े वेजिटेबल्स होते हैं। And let me tell you with lot of sorrow and sadness that these pesticides, they become the part of our vegetables, part of our pulses, part of our tea, part of our coffee, part of everything which is grown by the farmers, and they add zero nutrient value to us, whatever the size of vegetable it is, but they will add lot of poison to your food because they are persistent lipophilic compounds जो आपकी फसल के अंदर जाकर आपके जो फ्रूट्स हैं, आपके जो पल्सेस हैं, आपकी जो दालें हैं, जो आपकी चाय है, जो आपकी कॉफ़ी है, उसका एक बहुत इंटीग्रल पार्ट बन जाते हैं। और दुख की बात यह है, न तो ये कटने से ख़त्म होते हैं, न जलने से ख़त्म होते हैं, न ये धोने से ख़त्म होते हैं। हाफ लाइफ ऑफ अ DDT मॉलिक्यूल इज़ 250 ईयर्स। अगर आज हमने DDT अपने धरती पर डाला है तो उसे ख़त्म होने में 250 साल लगेंगे। बहुत बहुत स्वागत कीटनाशकों की दुनिया में आपका। अब जब हम बात ही इतनी कर रहे हैं पेस्टिसाइड की, थोड़ा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ अ पेस्टिसाइड? मैं बड़े ही लेमैन लैंग्वेज में आपसे बात कर रही हूँ। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि बायलिंगुअल मैं इसलिए चल रही हूँ कि सबको समझ में आए। तो व्हाट इज़ अ पेस्टिसाइड? Pesticide is a chemical substance or a mixture of substances intended to prevent, destroy, repel, mitigate any pest which can include insects, rodents, weeds, fungi, bacteria, viruses and other organisms that are considered harmful to humans, animals, crops and the environment. ऐसा एक जहर जो उस पेस्ट को या उस जानवर को मारने के लिए बनाया जाता है जो हमारी फसलों को नुकसान देते हैं, या ऐसे मक्खी मच्छर जो बीमारी फैलाते हैं। पेस्टिसाइड्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे एग्रीकल्चर में, हमारी पब्लिक हेल्थ में, हमारी क्रॉप्स को बचाने के लिए। क्योंकि एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगर हम 4 बीघा के अंदर जीरा उगाते हैं, अगर हम उसमें पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो 40 क्विंटल होता है, और अगर हम पेस्टिसाइड उसमें यूज़ नहीं करते हैं तो उससे 40 किलो होता है। तो दिस शोज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ पेस्टिसाइड्स इन आवर लाइफ, बट देन इट इज़ अ पॉइजन, इट इज़ इंटेंट टू किल एनी लाइफ। आप खुद सोचिए, जब आपके घर में मक्खी मच्छर हो जाते हैं तो आप DDT स्प्रे कराते हैं, और दीमक लग जाती है आप ऑल्ड्रिन स्प्रे कराते हैं। आप सोचिए कितना खतरनाक, कितना जहरीला होगा वो सब्सटेंस, उसके भिड़ते ही वो जानवर मर जाता है। राइट? हम जब स्प्रे करते हैं तो हमें बहुत सारी लाशें दिखती है, मच्छरों की, मक्खियों की, कॉकरोचेस की। तो सोचिए क्या भयंकर जहर होगा वो, कि उसके भिड़ते ही सारे जानवर खत्म। पर जहर तो जहर ही होता है ना। जहर तो लाइफ फॉर्म को मारने के लिए बनता है। अब वो चाहे हम हो, चाहे कॉकरोच हो, चाहे कोई ऐसे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हो, बटरफ्लाइज हो, मधुमक्खी हो, जहर को तो पता नहीं है ना, उसको सिर्फ पेस्ट को मारना है। वो तो गुड इंसेक्ट्स को भी मार देता है, वो जाके हमारे खाने में भी आ जाता है। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका कीटनाशकों की दुनिया में। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ पेस्टिसाइड्स। ये मैंने कुछ स्लाइड सिर्फ इसलिए रखी है यहाँ पर 2 चीज़ों का डिफरेंस बताने के लिए। ये जो फोटोग्राफ है, ये आप वीडियो देखें। इज माई वीडियो इज विजिबल? Yes, ma'am, it is. ये मैं अभी हनुमानगढ़ गई थी। हनुमानगढ़ में मैंने वहाँ पर रुककर इस चीज़ का वीडियो बनाया था। आप देख रहे हैं इस व्यक्ति ने कुछ भी प्रिकॉशंस नहीं ले रखे हैं।
the amount of pesticide he's spreading in his own field, he's spreading in other person's field also. और बिना कुछ सोचे अंधाधुन उसको स्प्रे कर रहा है. पेस्ट है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. So this is the real scenario. This is the real scenario and this is the actual scenario we wanted. This one. पेस्टिसाइड बहुत ध्यान से उनकी क्वांटिटी को मॉनिटर करते हुए, देखिए आपको 3 लोग अलग अलग से उसी प्लांट पे डाल रहे हैं, कहीं और नहीं डाल रहे हैं. वो मॉनिटर करते हुए अपने आप को बचाते हुए everyone is spreading. But this should be the ideal situation. पर सिचुएशन क्या है? सिचुएशन है ये वाली. और these are the open pesticide shops available in the villages, in the towns where farmers go and buy. आज मैं बहुत फील्ड्स में जाती हूँ, मैं फार्मर्स से बात करती हूँ. मैंने एक फार्मर से पूछा तुम्हें DDT मिला कहाँ से? कहता है मैडम दुकान पे बहुत मिलता है. तो मैंने कहा आपने क्या कह के लिया? आपने कहा मुझे DDT चाहिए. तो उसने कहा किस लिए? बोले मच्छर मारने के लिए. तो मैंने कहा आपने तो मच्छर मारने के लिए लिया था और आपने इसको फील्ड में स्प्रे कर दिया. In India, in 1990, DDT was banned to use in agriculture because of its harmful effects. But it is very much available to these shops on the name of public health. पर alas, इस धरती को पता ही नहीं है कि जो एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है या उसे मुझे एक्यूमुलेट करना है, जो पब्लिक हेल्थ में यूज़ हो रहा है उसे एक्यूमुलेट नहीं करना है. अर्थ हैज़ नो चॉइस. हमारी मदर नेचर बहुत इनोसेंट है. उस पर आप जो भी कुछ डालेंगे वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है. उसका दिल बहुत बड़ा है. तो whether we have banned DDT in agriculture, we are using in public health and we are endangering our mother nature. एक छोटी सी थोड़ी सी टेक्निकल बात है, इस बारे में भी मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी खासियत है, ऐसा कौन सा इफ़ेक्ट ऐसा है जो इन पेस्टिसाइड्स को या ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स को इतना भयानक, इतना खतरनाक बनाता है. 1965 में पॉल म्यूलर को नोबेल प्राइज़ मिला था क्योंकि उसने DDT का इन्वेंशन किया था. DDT का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोईथेन. इस कंपाउंड को मिराक्युलस कंपाउंड कहा गया और इसने हरित क्रांति करी और इस कंपाउंड ने दुनिया के हर मुंह के लिए खाना उगाया. जो कंट्रीज बहुत पुअर थी, जो डिपेंडेंट थी दूसरी कंट्रीज पे, दे बिकेम सेल्फ सस्टेनेबल. उनमें से एक हम भी थे. हमारा इनक्रेडिबल इंडिया भी था. ये जो DDT है ये एक क्लास ऑफ कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं PBTs, persistent bioaccumulative टॉक्सिक सब्सटेंसेस. ऐसे सब्सटेंसेस जो बहुत ज़्यादा देर तक पर्यावरण में रहते हैं, शरीर में जाके मल्टीप्लाई होते हैं और बहुत ही जहरीले होते हैं. इसी की एक और सब क्लास है जिसको हम कहते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स. ये वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर बेंजीन रिंग होती है और ये बेंजीन रिंग इनको ये खासियत देती है कि ये जाके हमारे बॉडी सेल्स के अंदर घुल जाए, उसकी सेल वॉल के अंदर घुस जाए, उसके प्रोटोप्लाज्म में घुस जाए. Pesticides, particularly the persistence type, get translocated into air, water and soil from their point of initial application and thus endangering the normal functioning of the human body, of environment or anything. अभी मैंने आपसे एक बात करी थी. I just said कि बायोमैग्निफिकेशन. What is biomagnification? मैं यहाँ नहीं, मैं आपको एक पिक्चर के हिसाब सी दिस. बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जब कोई भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, आपको पता है ना कि ट्रॉफिक लेवल के अंदर एक ट्रॉफिक लेवल दूसरे ट्रॉफिक लेवल का फूड है. तो अगर हमने DDT को 0.003 अपनी फील्ड में डाला है तो वो पानी में है 0.003, पर जब उसे जू प्लैंक्टॉन्स खा रहे हैं तो 0.04 ppm. ये देखिए, ये पार्ट्स पर बिलियन है, पार्ट्स पर मिलियन है. और इसको जब मछली ने खा लिया
तो वो हुआ 0.5 ppm छोटी मछली ने। जब उसे बड़ी मछली ने खाया तो हो गया 2 ppm, और जब उसे किसी रैप्टर ने खा लिया, किसी बर्ड ने खा लिया, तो वो हो गया 25 ppm। एंड दिस इज द ट्रॉफिक लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो जो 0.003 pp था, वो बढ़ता 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 वो हो गया 25 ppm। बहुत स्वागत है आपका इन कीटनाशकों की दुनिया में। शी इज माई हीरो। मैं इन्हें अपना बिल्कुल हीरो मानती हूँ, और मैं मानती हूँ कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें एक बहुत खतरनाक जहर के बारे में बताया। हर नेम इज डॉक्टर रकेल कार्सन। ये मैराइन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थी जिन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी 1962 में, जिसका नाम था द साइलेंट स्प्रिंग। उनका ये कहना था कि आने वाले ये जो साइलेंट स्प्रिंग शब्द एक है, मेटाफोर है। उन्होंने ये कहा था कि आने वाले टाइम में जो हमारे झरने हैं, ये झरने तो सारे रहेंगे, पर इनके साथ जो चिड़ियाओं की चहचहाट हमें जो सुनाई देती है ना, वो नहीं सुनाई देगी, और ये जितनी भी सारे झरने ये सब शांत हो जाएंगे। उन्होंने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया कि जो ये DDT है आप स्प्रे कर रहे हो, जो ये आपने इसको ग्रेन में मिलाया, आप ये जो चिड़ियाओं को खिला रहे हो, ये इन सब चिड़ियाओं को ख़त्म कर देगा, झरने वैसे ही रहेंगे, इस धरती से चिड़ियाएँ ख़त्म हो जाएंगी। एंड शी रोट दिस साइलेंट स्प्रिंग। उन्होंने साइलेंट स्प्रिंग को लिखा, और साइलेंट स्प्रिंग में उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया बॉल्ड ईगल का। कितना खूबसूरत एनिमल है, देखिए। दिस बॉल्ड ईगल इज अ नेशनल बर्ड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक टाइम पे 1960s के अंदर इसके सिर्फ 40 जोड़े बचे थे जॉर्जिया के अंदर। रकेल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग में ये लिखा था कि जब ये रोडेंट्स को खाता है, या जो भी चीज़ ये खाता है उसके अंदर पेस्टिसाइड्स है, ये ग्रेन भी खा लेता है, ये रोडेंट्स भी खा लेता है, ये जो भी इसको छोटे मोटे छिपकली जानवर मिलते हैं सबको खाता है, और उन सब के अंदर पेस्टिसाइड ऑलरेडी एक्यूमुलेट हो रहा है। वो जाके इसके अंदर जो एग फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसको इंटरफियर करते हैं, कैल्शियम फॉर्मेशन को सप्रेस कर देते हैं, और जब ये जाके उस अंडों पे बैठता है वो अंडे फूट जाते हैं, और धीरे 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 दे आर नो न्यू जनरेशन ऑफ बॉल्ड ईगल। American government immediately woke up. They banned the use of DDT. They started conserving bald eagles. They have spent lakhs and lakhs and lakhs and crores of dollars, and today they saved the bald eagle. And now you go to Georgia, I have seen there. You go to Georgia, you will see beautiful bald eagles flying in the air. So, is man has become a god? पहले उसने बॉल्ड ईगल को एंडेंजर किया DDT से, फिर खूब करोड़ों रुपए खर्च करके उसे बचा लिया, क्योंकि वो अमेरिका का नेशनल बर्ड था। क्या इंडिया ऐसा कर पाएगा? क्या दूसरी बांग्लादेश कर पाएगा? क्या ऐसी अदर कंट्रीज है जिनके पास खाने को पैसे नहीं है, क्या वो अपने नेशनल बर्ड्स को बचा पाएंगे? बिल्कुल नहीं बचा पाएंगे। सो दिस इज अ काइंड ऑफ इंटरफेरेंस, एंड वी टॉक्सिकोलॉजिस्ट डोंट अप्रिशिएट दैट। हमें डोडो को नहीं बचाना था, हमने नहीं बचाया ना, पर हमें बॉल्ड ईगल को बचाना था, तो वी सेव द बॉल्ड ईगल। हमने इसको आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करी, इसकी सेंचुरीज बना दिए, थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ मनी स्पेंड कर दिए, उस एरिया को DDT फ्री कर दिया। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पेस्टिसाइड्स। एक और, जैसे मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि एक ट्रॉफिक लेवल के लिए दूसरा ट्रॉफिक लेवल फूड क्या काम करता है। तो अगर आप सारे इंसेक्ट्स को ख़त्म कर देंगे तो ये फ्रॉग्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, ये सब क्या खाएंगे। और बहुत दुख की बात यह है कि जब पेस्टिसाइड फील्ड में स्प्रे होते हैं तो उसके चारों तरफ जो बायोडाइवर्सिटी है, जिसमें बटरफ्लाइज हैं, हनी बीज हैं, और बहुत सारे रोडेंट्स और एम्फीबियंस हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। So total biodiversity is being removed, and this disruption can lead to the imbalance in the ecosystem, potentially causing population declines, cascading effects throughout the food web. अगर एक ट्रॉफिक लेवल का पॉपुलेशन कम हो जाएगा तो दूसरे का भी अपने आप खत्म हो जाएगा।
I won't talk much here about it, but I would like to say एक बहुत simple phrase है, if birds will disappear from the earth, humans will also disappear. And birds and humans, they are at the same trophic level. तो जिस थ्रेड से हम गुजर रहे हैं उसी थ्रेड से बर्ड्स भी गुजर रहे हैं. So these pesticides, they have a capability of sweeping off the full generation, rather I will say full species from the earth. ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं यूके से हैं जहाँ 3-3 साल के अंदर उस जहाँ पे पेस्टिसाइड यूज हो रहा था वहाँ से पूरी पॉपुलेशन ऑफ रेप्टर्स खत्म हो गई. व्हाट आर रेप्टर्स? दीज आर प्रे ईटिंग बर्ड्स लाइक owl, peregrines, hawk, vultures. Even when pesticides are being in the agriculture field, they are not only affecting birds or amphibians, they are also affecting the soil quality. देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा पीछे की तरफ ले जाती हूँ. पहले आज से 30-40 साल पहले हमारे किसान जब खेती करते थे वो आधा खेत जोतते थे, आधा वो छोड़ देते थे कि अपने आप माइक्रोबियल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, गाय घूमेंगी, चरेंगी, तो जो गोबर होगा उससे हमारी लैंड वापस से रिजुविनेट हो जाएगी और इतने हम इधर खेती कर लेंगे. फिर जब यहाँ खेती हो जाती थी वो इस लैंड को छोड़ देते थे, वो दूसरी लैंड की तरफ चले जाते थे. पर आजकल तो क्या होता है, रबी खत्म हुई तो खरीफ लगा दी, खरीफ खत्म हुई तो रबी लगा दी. पहले 5 ppm यूज़ किया था, अब 10 ppm यूज़ कर रहे हैं और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स आर एडिंग मोर स्पाइस टू इट. मैं आपको ज़्यादा दूर नहीं, हमारी नेबरिंग स्टेट पंजाब की तरफ लेके जाती हूँ. आज पंजाब की क्या हालत है? पंजाब हैज़ गॉन बैरन. पंजाब की वाटर बॉडीज कंटामिनेट हो चुकी है, उसकी लैंड बिल्कुल बैरन हो चुकी है. वहाँ पे प्रोडक्शन ईयर बाय ईयर गिरता जा रहा है और वहाँ के जो सब्जियाँ हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, दे आर नॉट एडिबल. एक अभी 6 महीने पहले मैं आपको बताती हूँ, यूके, यूएसए एंड यूरोप, they have stopped taking mangoes, spices and any food product from India because they found that whatever food we are sending them has got a lot of pesticide and it was much beyond the levels of pesticides as approved by FAWA for edible compounds. So pesticides ये तो कर ही रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी हमें ख़राब कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी ख़राब कर रहे हैं, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को ख़त्म करने की कोशिश में है. पर साथ ही वो जो हमारी सॉइल क्वालिटी है, हमारी वाटर क्वालिटी है, उसको भी धीरे धीरे बिल्कुल फिनिश कर रहे हैं. ओके. एक और चीज़ यहाँ पे भी मैंने पानी की बात करी थी कि वाटर साइकिल इज़ लाइफ साइकिल. देयर इज़ नो लाइफ विदाउट वाटर, बट वाटर हैज़ गॉट अ वेरी स्पेशल क्वालिटी एज वेल, क्लीनिंग. हमें कुछ भी साफ़ करना होता है, कहते चलो धो लेते हैं, हमें गाड़ी चलो धो लेते हैं. तो ये पानी की एक क्वालिटी है, वो क्लीन करता है. तो जब पानी एक जगह से आता हुआ दूसरी तरफ जा रहा है तो अपने साथ सारी गंदगी लेके जाता है, साथ में वो पेस्टिसाइड भी लेके जाता है. इफ आई टॉक ऑफ बीकानेर, आई हैड वर्कड ऑन द वाटर क्वालिटी ऑफ बीकानेर. I had reported water contamination Bikaner in 2002, and I tell you, all the 4 parts of Bikaner, east, west, north, south, has got a lot of pesticide in their water. There is a paper has been published by me in one of the international journals, and Bikaner is at double risk. How? पेस्टिसाइड तो यूज़ आप फील्ड में कर ही रहे हैं, प्लस आपकी वो जो IGNP आ रही है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नहर का पानी जो आपके पास गंगानगर हनुमानगढ़ से होता हुआ आपके पास आ रहा है, वो वहाँ से सब कुछ समेटता हुआ लेके आ रहा है. और साथ में आप उसमें और पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, तो डोल इज ट्रिपल 4 times 5 times. स्वागत है आपका कीटनाशकों की दुनिया में.
एक और चीज़ जो हमारे यहाँ पेस्टिसाइड के यूज़ को बढ़ाती है, विच इज़ नोन एज पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस। ओवर द टाइम क्या होता है कि हम किसी भी लाइफ फॉर्म को मारने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर एक एबिलिटी डेवलप होती है कि वो अपनी जान बचाता है, वो अपने आप को सेव करता है। तो जैसे ही हम पेस्टिसाइड डालते हैं तो उसके बाद की जो जनरेशन्स हैं वो अपने आप को उस पेस्टिसाइड की से रेजिस्टेंट करने की कोशिश करती हैं, उससे बचने की कोशिश करती हैं जेनेटिकली। आज की तारीख में जो पेस्ट 5 ppm से ख़त्म हो जाते थे पहले, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, 10 साल पहले, वो आज 10 ppm से भी ख़त्म नहीं हो रहे। तो इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इंसेक्ट्स के अंदर डेवलप हो गया है, पेस्ट के अंदर डेवलप हो गया है कि हमें हर बार पेस्टिसाइड के यूज़ को डबल, ट्रिपल, 3 times, 4 times, 5 times करना पड़ रहा है। So this is not only harming non-target species but can also make pest management less effective in long run. This I won't talk much. These are the 2 type of pesticides which are one is DDT and other is Aldrin, which are cyclodynes. दोनों बहुत डिफरेंट तरीके से बर्ड्स में इफेक्ट करते हैं। एक एक्शेल थिनिंग करते हैं, दूसरा सीधा जाके उसकी मोर्टालिटी, वो इतने ही डेंजरस होते हैं ऑल्ड्रिन डायोडलिन कि बर्ड उसे खाते ही मर जाती है। आपको पता है बर्ड्स आर सो इनोसेंट, आप उन्हें दाना देंगे वो खा लेंगी। हम क्या करते हैं कि हम अपने ग्रेन्स वगैरह के अंदर पेस्टिसाइड लगा के रखते हैं। एंड बर्ड्स आर सो इनोसेंट देन दे ईट इट एंड दे बिकम इंटॉक्सिकेटेड। मैंने आपसे अभी एगशेल थिनिंग की बात करी थी कि बर्ड्स जैसे ही उस पर बैठती हैं, दिस इज द एगशेल थिनिंग, दे इज द ओनली वन बेबी, रेस्ट इज नथिंग। दिस इज द एगशेल थिनिंग बाय DDT. This is the mortality. This is our national bird. So water act as a runoff, and there is a nehar going in between and there are field around it. So whatever pesticide this guy is spraying, that will go to the water. So एक तो रन ऑफ से चला गया, दूसरा जब हम अपनी फील्ड में पेस्टिसाइड डालते हैं तो वो धरती के अंदर लीच कर जाता है। मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ कि दुनिया में 2 ऐसी हैबिटाट हैं जो मैं ये तो नहीं कहूँगी इम्पॉसिबल है, बिकॉज मैन हैज़ बिकम गॉड, ही वॉन्ट्स टू गो एनीवेयर ही विल गो। एक तो है मारियाना ट्रेंच और एक है माउंट एवरेस्ट। ये दोनों थोड़ी डिफ़िकल्ट जगह हैं या हैबिटाट है पहुंचने के लिए। माउंट एवरेस्ट आप सबको पता है इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक। मारियाना ट्रेंच में आपको बताती हूँ कि जब आप समुंदर तल पे जाएंगे और फिर उसको आप 8 किलोमीटर तक खोदेंगे, यू डिग आउट टिल 8 kilometers downstairs, that becomes the core of the earth. DDT was found there as well. When it was not applied there, how did it reach there? This is the quality of these noxious compounds. They travel from their point of application to the places where it is not needed. These are the few ways how which the water get, contaminated. When we apply on the field, sometimes it gets spilled, sometimes it is not disposed properly. बचा हुआ है उसको पानी में फेंक दिया, धरती में गाड़ दो. These are the ways, but at the end of the day, both the things are contaminating our mother nature. This is a pesticide cycle. How pesticides move in the ecosystem. They are being sprayed in the field, they get into leaching, they get into the water, they even sometimes get vaporized and goes in the air, then it falls come back in the form of precipitation. So it is a noxious cycle. We need to break this noxious cycle. हम जो इतनी बात कर रहे हैं पेस्टिसाइड है, इनकी खतरनाक प्रॉब्लम क्या है मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि पेस्टिसाइड्स आर नोन एज पोटेंट कार्सिनोजेंस, म्यूटाजेंस, टेराटोजेंस, immunosuppressors, gallbladder stones, type 2 diabetes, nervous disorders,
what not they can do. आप अपने आसपास, पहले आपने कभी कैंसर इतना सुना था? आज हर दूसरा व्यक्ति कैंसर से मर रहा है, और इस तरह के कैंसर्स जो हमने कभी सुने ही नहीं थे पहले. सो ये है दुनिया कीटनाशकों की. तो इसमें अभी हम लोग, मेरी 2 बहुत बड़ी लेबोरेटरीज हैं मेरे कॉलेज के अंदर, और उसमें हम 1 करोड़ का प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं. तो जो अलवर है जहाँ मैं पोस्टेड हूँ, और उसके आसपास भिवाड़ी, तिजारा 2 जगह हैं, वहाँ पे हम वहाँ का पानी ले रहे हैं, और उस वहाँ पे डिफरेंट वाटर सोर्सेज से, और दूध जो हम डेयरी से कलेक्ट करते हैं, सरस के पैकेट्स लेते हैं, अमूल के पैकेट्स लेते हैं, ओपन वेंडर से हमने किया, और उसमें हमने पेस्टिसाइड की क्वांटिटी को देखा कि ह्यूमंस कितना पेस्टिसाइड इंजेस्ट कर रहे हैं. अगर आप लोग कभी अलवर के आसपास गए हो तो वहाँ पे एक लेक है, सिलिसिट लेक, विच इज़ लाइक अ वाटर रिजर्वायर फॉर अलवर पीपल. हमने वहाँ से सैंपल लिया, हमने हैंडपम्प से लिया, हमने वेंडर से दूध के सैंपल्स लिए, वाटर के सैंपल्स लिए, फिर उसे हमने अपनी लेबोरेटरी में एक्सट्रैक्ट किया, और दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ नोन एज गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफ. ये 40 लाख का इंस्ट्रूमेंट है, और हमारी एक कॉस्ट, लेट मी टेल यू, एक पेस्टिसाइड को जब हम एस्टिमेट करते हैं, एक सैंपल को, उसकी लागत आती है 50,000 रुपये. तो उसके एस्टिमेशन हमने किए. दिस इज़ आवर इंस्ट्रूमेंट. आई वोंट गो इन द टेक्निकलिटी ऑफ दिस, बट मैंने सिर्फ आपको ये दिखाना था कि किस तरह का काम पेस्टिसाइड्स पे हम लोग करते हैं. एंड दीज आर द रिजल्ट्स. These are the results of 80 water samples collected from different parts of. So मैं आपका जो ध्यान लाना चाहूँगी वो मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर पे लाना चाहूँगी. 0.02, 0.31 ये ईस्ट जोन है. हम चलते हैं साउथ जोन की तरफ. 0.018, 0.35 अल्फा BAC, गामा BAC, डेल्टा, गामा, हेप्टाक्लोर, इपॉक्साइड, ऑल्ड्रिन, डाउल्ड्रिन, क्लोडेन, एंडोसल्फान. There are 27 parameters we are seeing. 27. अगर मैं आपको सिग्मा OCP मतलब टोटल OCPs पे लेके जाऊँ तो it's bit horrifying. It's 1.6, it's 1.5, 1.9 parts per million. And you know what is the permissible limit of WHO? It's 0.0001 ppm. अगर हम उस हिसाब से देखें तो हम जो पानी पी रहे हैं वो हमारे पीने लायक नहीं है. ये मिल्क सैंपल्स हैं. पहले मैंने आपको जो दिखाया था वो वाटर सैंपल्स थे. अब मैं आपको जो दिखा रही हूँ मिल्क सैंपल्स हैं. मिल्क के अंदर बहुत ज़्यादा फैट होता है, और फैट में पेस्टिसाइड घुल जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं. तो सुबह जो आप चाय का कप पीते हैं उसके अंदर आप चाय के अंदर, चले चाय बहुत ही डेलिकेट प्लांट है, उसको उगाने के लिए बहुत पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं. तो पहले तो हम चाय को उबालते हैं, फिर उसके बाद हम उसके अंदर दूध डालते हैं विच इज़ लेडन विद पेस्टिसाइड्स. तो सुबह हम एक कॉकटेल ऑफ पेस्टिसाइड्स पीते हैं, हम चाय नहीं पीते. कैन यू सी इट्स पॉइंट. मैं आपको बिल्कुल सिग्मा पे लेके चलती हूँ. ओके, यहाँ पे देखिए 4.2, 1.7. Imagine the amount of pesticide we are ingesting. अगर हम FAO WHO पे जाएं तो हमारा तो दूध भी और पानी भी दोनों पीने लायक नहीं है. हम अपने आप को रोज एक कैंसर की डोज दे रहे हैं. These are certain abbreviations कि हम सिग्मा किसको कहते हैं. सिग्मा मतलब टोटल करते हुए, जैसे एक कंपाउंड में ऊपर बात करूंगी, सिग्मा BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड. इसके 4 वेरिएंट है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा. और बड़े दुख की बात यह कि मुझे ऐसा एक भी सैंपल नहीं मिला आज तक जिसमें पेस्टिसाइड ना हो. देयर वाज, अभी बीच में बड़ा चला था कि उस कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड है, अरे उस कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड है, अरे उस कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड है. है ना, क्योंकि बनता तो पानी से ही है. जब पानी में पेस्टिसाइड है तो भाई कोल्ड ड्रिंक में कैसे नहीं होगा. स्वागत है आपका कीटनाशकों की दुनिया में.
So these are the certain results which are very horrifying. इसमें हमें एक बड़ा अच्छी फाइंडिंग मिली थी, जो मैं आपको बार बार कह रही थी कि एग्रीकल्चर फील्ड में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ होता है. तो अलवर का वेस्ट पार्ट है जो थाना गाजी और जयपुर से लगता हुआ होता है. तो वहाँ पर बहुत सारे फील्ड है. अलवर के चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ इतनी फील्ड नहीं, पर जो वेस्ट पार्ट जयपुर से कनेक्ट हो रहा है वहाँ पहाड़ियाँ कम है, वहाँ एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं. तो वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड मिला, बिकॉज वहाँ सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड अप्लाई हो रहा है, क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, वहाँ दिन रात पेस्टिसाइड डल रहा है, फर्टिलाइजर्स डल रहे हैं. और हमें गामा आइसोमर मैक्सिमम मिला, क्योंकि वो स्टेबल था और वो सबसे खतरनाक पार्ट है जो इसको इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी देता है. दिस इज समथिंग आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज. वो एक अभी जो मैंने आपको बताया वो एक काइंड का प्रोमो था, एक काइंड का मैं इंट्रोडक्शन आपको बता रही थी कि हम किस तरह से एक्सपोज हो रहे हैं, क्या क्या कारण है. अब जो बात मैं आपसे करने जा रही हूँ वो बड़ी ही खतरनाक है. एक समय था जब साइंटिस्ट ये मानते थे कि जो माँ का प्लाजेंटा है, जो मदर्स प्लाजेंटा है, इट एक्ट एज अ सीव. ये एक छलनी की तरह काम करता है, और छलनी की तरह काम करने के लिए वो क्या करता है कि अगर माँ ने कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस खा लिया है तो वो छलनी की तरह एक्ट करेगा, और जो टॉक्सिक मटीरियल है वो माँ के पास जाएगा, बेबी के पास नहीं जाएगा. एंड प्लासेंटा एक्ट एज अ प्रोटेक्टर. So scientists used to believe whatever mother is being exposed to any toxicant, it will not traverse the placenta, it will not go into cord blood, and the baby will be saved. This concept has been shattered by organochlorine pesticides. Organochlorine pesticides are persistent, bioaccumulative, lipophilic, persistent compounds. They have benzene ring. They can cross the placenta very easily with food and go to the developing baby and create all havoc there. So imagine the child which is not even born. जो बच्चा भी पैदा ही नहीं हुआ है उसको हम पेस्टिसाइड से एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि माँ जो खाना खा रही है, माँ जो पानी पी रही है, माँ जो दूध पी रही है, माँ जिस हवा में सांस ले रही है, इट इज लेडन विद पेस्टिसाइड्स. क्योंकि अगर एक मॉलिक्यूल की लाइफ 250 साल है, तो आज से तो 250 साल तो अभी हुए ही नहीं DD2 को बने हुए. तो जो 1950 1960 में डला था उसको हम आज तक भोग रहे हैं, साथ में हम और ऐड कर रहे हैं. आपका स्वागत है कीटनाशकों की दुनिया में. तो इस चीज को जब हमने समझा तो एक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का प्रोजेक्ट था जो मुझे मिला, और हमने, अगर आप लोग जयपुर के हैं तो जयपुर में SMS मेडिकल कॉलेज है, उनके साथ मिलकर हमने इस काम को किया. और उनके 2 बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जनाना हॉस्पिटल एंड महिला चिकित्सालय, जो उनके डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनिकोलॉजी से कनेक्टेड है. इसके अलावा हमने, क्योंकि हमें हर फील्ड की महिला पे काम करना था, तो हमने जो, क्योंकि अपर क्लास गोज टू द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तो हमने बनी पार्क, जो कि एक बड़ा अच्छा अमीर इलाका है जयपुर का, वहाँ पे एक संजीवनी हॉस्पिटल है, उससे भी हमने टाइप किया. एक मीरा हॉस्पिटल है, उससे हमने टाइप किया, और हमने 100 महिलाओं को इंगित किया. When these women, they come, when they were pregnant, their blood was collected. There were 101 samples. And when the baby was born, I used to stand out with my team, and they used to throw placenta and the cord. हम उस प्लेसेंटा को कलेक्ट करते थे, हम उस कॉर्ड को कलेक्ट करते थे, उस ब्लड को लेते थे, और जब 7वें दिन और 8वें दिन मदर वापस आती थी तो हम उनसे उनका मिल्क लेते थे. और हमने इन सब के अंदर ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स को स्टडी किया. The calculations are based on biological statistics and they are expressed as mean plus minus standard error, जैसा मैंने आपको अपनी प्रीवियस स्टडी में बताया था. और हम ये जो सारा एक्सट्रैक्शन है, ये बहुत बड़ी बड़ी मेथडोलॉजीज होती हैं. बुश एंड इसको वर्कर्स फॉर
मदर्स ब्लड, प्लाजेंटा एंड कॉर्ड ब्लड और मिल्क के अंदर हमने टाकी एंड इसको वर्कर्स की मेथडोलॉजी को यूज़ किया, इनका एक्सट्रैक्शन किया, इनको ड्राई किया, फिर हमने इसको गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफ के ऊपर एस्टिमेट किया पेस्टिसाइड्स के लिए. These are the results of maternal blood, cord blood and placenta. मैं आपका ध्यान फिर से मीन प्लस माइनर स्टैंडर्ड एरर की तरफ लेके जाऊंगी. ये 100 सैंपल थे, एन है नंबर ऑफ पॉजिटिव सैंपल. मुझे इनमें भी, इंसानों के सैंपल्स के अंदर भी, ह्यूमन सैंपल्स के अंदर भी एक भी ऐसा सैंपल नहीं मिला जिसमें मुझे पेस्टिसाइड्स ना मिले हों. Every sample is contaminated with one or the other kind of pesticide. And the range 2.0 to 1018 ppm, parts per million. It is 77.8, 43.2, 65.3. अब आप देख लीजिए ये ह्यूमन सैंपल से 50 गुना ज़्यादा है. ह्यूमंस के अंदर जो सैंपल्स अभी हमने देखे थे उसमें 0.1, 0.2 इस तरह के थे. इसमें आप देखिए दे आर 77, 43, 65, 1432. सो एंड द परमिसिबल लिमिट अगेन हम बात करें बॉडी के अंदर इज 0.001 ppm. तो हम इतना ऑलरेडी अपने अंदर एक्यूमुलेट कर रहे हैं. ये ह्यूमंस के सैंपल्स हैं, ये रिपोर्ट्स ह्यूमन सैंपल्स की है. और एक नहीं, 101 सैंपल्स आर बीइंग टेकन. 101 samples of mother's blood, 101 samples of placenta, 101 samples of cord blood and 101 samples of human milk. That is 410 samples. And another foreign finding study, फिर हमने जब ह्यूमन मिल्क के अंदर देखा, जो बेबी को हम डॉक्टर्स कहते हैं माँ का दूध पिलाइए बच्चे के बढ़ने के लिए, वो सबसे अच्छा है. आपको मैं बताती हूँ, अल्फा 0.09, 0.03, 0.01, 5.2, 0.1, 1.1, 0.4. टोटल ओसीपी की बात करें या टोटल डीडीटी की बात करें तो 0.2, 4.3, 0.2. परमिसिबल लिमिट इज 0.001. तो कैन वी से मदर्स मिल्क इज नॉट फिट फॉर बेबी टू ड्रिंक? मीन्स वी आर किलिंग आवरसेल्फ स्लोली. हम खुद को तो मार ही रहे हैं, साथ में हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी खत्म कर रहे हैं. पहले तो जब बच्चा पैदा नहीं हुआ तभी वो एक्सपोज हो गया पूरे कॉकटेल ऑफ पेस्टिसाइड से. जब वो पैदा हुआ तो उसने जो पहला घूंट लिया वो भी पेस्टिसाइड से भरा हुआ था. देखिए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, अगर हम कोई टॉक्सिक चीज खा लेते हैं तो क्या होता है? वी वॉमिट. हम वॉमिट नहीं करेंगे तो डॉक्टर, हम हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर हमें वॉमिट कराएगा. या वी विल गो थ्रू डायरिया, बॉडी विल थ्रो इट आउट. सो human milk is also a kind of route through which mother through the body burden of these pesticides, and that milk is being drank or by the baby. तो माँ के लिए उसका दूध तो एक एक्सक्रीटरी सोर्स है उन पेस्टिसाइड्स को शरीर से निकालने का. तो क्या ये मैं, क्योंकि माँ के दूध के अंदर बहुत ज्यादा फैट होता है and these compounds are fat soluble. So if I take you to the डब्बा बंद दूध, जो हमारे जो पैकेज्ड मिल्क होता है, उसके अंदर फैट की क्वांटिटी कम होती है. तो जब हमने उसको स्टडी किया तो उसके अंदर पेस्टिसाइड की क्वांटिटी माँ के दूध से बहुत कम निकली. So can I put thing like this, that mother milk has got so much of pesticide, so much of fat, so it is not drinkable, so we should shift to the packaged food or the boxed milk which has got less fat and less pesticide. Welcome to the world of pesticides. There is another thing which we have observed in this is that once these pesticides get into the body, they get metabolized. When metabolization happens, they make certain compounds which are more stable than the parent compound. Suppose if we talk of DDT,
When it is digested and metabolized, it get converted into DDE and DDD. DDT is dichloro-diphenyl trichloroethane. What is DDE? DDE is dichloro-diphenyl ethylene, that is 100 times stable than the parent compound. So even after 2.5 साल बाद DDT खत्म भी हो गया तो उसके मेटाबोलाइट्स हमारे अंदर रहेंगे. They will be available in the environment. Since I've been talking about contamination of mother's milk with organonucleotide pesticides, तो मैंने कुछ रिपोर्ट्स ढूंढे आप लोगों के पास जब मैं आ रही थी. तो मैंने सोचा मैं आपको जयपुर का बता रही हूँ, मैंने आपको बीकानेर का बता दिया, मैंने आपको अलवर का बता दिया. मैंने देखा कि हिंदुस्तान में और कहाँ से कुछ रिपोर्ट्स हैं, दुनिया से तो लाखों करोड़ों हैं. तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा, क्योंकि मुझे टाइम जितना दिया था उसमें मैं बहुत सारी बातें करना चाहती थी आप लोगों से, तो मैंने कुछ रिपोर्ट्स को ढूंढा ऑनलाइन और मुझे अहमदाबाद, बेंगलोर, बॉम्बे, कलकत्ता, न्यू दिल्ली, करनाल, लखनऊ, वहाँ से ह्यूमन मिल्क के एस्टिमेशंस मिले और उन लोगों ने जो अमाउंट रिपोर्ट किया है 6.5, 0.05, 0.2, 0.1, 0.4, 0.9, 5.2, 0.1 and so on, they are again all are higher than the permissible limits of WHO and FAO. So we are not killing ourselves slowly, we are killing our future generations too. हम अगर माँ का दूध बच्चे को नहीं पिलाएंगे तो हम उसे क्या पिलाएंगे बताइए. स्वागत है आपका कीटनाशकों की दुनिया में. अब जब इतनी बात हमने कर ली विमेन हेल्थ की, ह्यूमन हेल्थ की, बच्चों की, हमें इस बात को बहुत अच्छे से यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो न्यू बॉर्न बेबी है, it is not small adult. They differ morphologically, physiologically, biochemically from adults. Therefore, a neonate will respond differently to pesticide and other agents. What seriously we need to consider here is the synergistic action of dose-effect relationship of DDT, HCH, Aldrin, heptachlor, which are simultaneously present. मैं तो एक दूध के अंदर आपको बता रही हूँ कि 10 तरह के पेस्टिसाइड है, पर बच्चा तो पूरा दूध पी रहा है, वो सारे 10 के कॉकटेल एक साथ पी रहा है. कौन से पेस्टिसाइड की कितनी डोज उसके अंदर जा रही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दैट बेबी इज जस्ट नॉट अ स्मॉल एडल्ट. वो हमसे बहुत अलग है, बहुत छोटा बच्चा है. वो फिजियोलॉजी के डिफरेंट है, उसकी इम्यूनिटी अलग है, उसकी बायोकेमिस्ट्री अलग है. देखिए मैं डोज की बात करती हूँ. There is a phrase writer Paracelsus, according to him, और इसको हम टॉक्सिकोलॉजिस्ट बारे में बहुत बात करते हैं. There is everything which is present around us is a poison. There is none which is not a poison. The right dose differentiates the poison and the remedy. हमारे आसपास जो भी सब्सटेंसेस हैं वो सब जहर है. आप एक व्यक्ति को नमक से मार सकते हैं, पानी से मार सकते हैं, सिर्फ डोज डिसाइड कर लीजिए. सो व्हाट डोज दैट लिटिल बेबी इज इंजेस्टिंग वी डोंट नो. सो it can be concluded that magnitude of the pollution is quantitatively enough to contaminate the food and the environment, and pesticide reach the human body through various sources of absorption, through gastrointestinal tract, through air, through water, through blood, anything. They reach to our body and become the integral part of our system. ये मैंने आपको बताया ही है कि pesticides are reported to be carcinogens, mutagens and so on. This thing I want to recite this slide for all of you. OCPs are reported to be carcinogenic, mutagenic, teratogenic, immunosuppressive, cancer causing, mutation causing, जो बच्चों में जनित बीमारियां होती हैं, किसी बच्चे के हाथ नहीं होते, किसी की उंगलियां नहीं होती, किसी का सर बड़ा होता है, जो पैदा होने पे जो बीमारियां मिलती हैं उनको हम टेराटास कहते हैं. Immunosuppressive, deplete the vitamin D levels, create endocrine dysfunction such as hypothyroidism, which is very common these days,
high estrogenic activities, diabetes. Every second person is having diabetes. Disturbed reproductive processes, growth depressants. I'm sorry, I should have a sip of water. Growth depressants associated with gallstone diseases. आज हर व्यक्ति के gallstones हो रहे हैं. Several psychogenic neurogenic abnormalities in adult stages associated with abortions, premature deliveries, stillbirths, and infants with low birth weight. बचा क्या फिर? कुछ भी नहीं बचा. जितनी सारी बीमारियां ये पेस्टिसाइड्स करते हैं, इसके बाद तो बहुत ही कम बीमारियां बच जाती हैं. अभी ये लाइन में पढ़ना चाहूंगी. OCPs have been in use in India nearly for half a century now. Even after having clear-cut evidence suggesting that these chemicals have the ability to eliminate entire species from the planet, the annual consumption of pesticide in India is about 85,000 tons, of which OCP comprises the bulk. Excuse me. तो आज भी इंडिया के अंदर 85,000 पेस्टिसाइड्स, टन्स ऑफ पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं. नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन? करना क्या है? अभी तो हमने बात की. महिलाओं से तो मेरा अनुरोध है कि बिल्कुल पेस्टिसाइड ना यूज ना करें. उस जगह पर भी ना जाएं जहाँ पेस्टिसाइड यूज होता है. घरों में ना यूज करें. अपने ग्रेन्स को मत यूज करें. थोड़ा बहुत चिड़िया और जानवरों को खाने दें, उन्हें भी खाने दीजिए यार, मत रोकिए. खाने दीजिए थोड़ा बहुत खाना. होता था ना हमारे घरों में, मेरी दादी नानी, एक कुत्ते की रोटी, एक गाय की रोटी, एक उसकी रोटी, उसकी फिर घर वाले की रोटी, फिर घर वालों को खाना मिलता था. खाने दीजिए, खाने दीजिए उनको थोड़ा बहुत. डोंट यूज पेस्टिसाइड एट ऑल इन योर किचन. ऑलरेडी बाहर बहुत यूज हो रहा है पेस्टिसाइड. अपने घरों में मत यूज करिए. अब जब इतना कुछ हो गया तो अब बहुत सारी ऐसे रिसर्चर्स चल रही हैं कि ऐसे पेस्टिसाइड्स बनाए जाएं जो पेस्ट स्पेसिफिक हो, जिनके कोई साइड इफेक्ट्स ना हो, या कुछ ऐसे ही प्लांट्स बना लिए जाएं जिनको पेस्ट ही ना खाएं. पर ऐसा होता नहीं है. एक चीज और है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. दीज स्ट्रैटेजी शुड बी इम्प्लीमेंटेड. कुछ पेस्ट स्पेसिफिक प्रीडेटर्स को हम यूज कर सकते हैं, जैसे कुछ पैरासाइट्स हैं, पैथोजेंस हैं. स्टेरिलाइजेशन ऑफ इंसेक्ट्स कर सकते हैं हम रेडिएशन से. इंसेक्ट्स को हम ट्रैप कर सकते हैं फिजिकल मीन से. कुछ जुवेनाइल हार्मोन्स को यूज कर सकते हैं. नीम पे बहुत काम हो रहा है. नीम इज बीइंग यूज्ड अ लॉट नाउडेज. We need to be phasing out the chemical pesticides and replace with biopesticides and more sustainable agriculture practices. Public awareness campaigns can help to reduce exposure of OCPs. एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ, अवेयरनेस. हमारे देखिए, हम वो खाते हैं जो हमें उगा के देते हैं फार्मर्स, पर हमारे फार्मर्स आज इतने एजुकेटेड नहीं हैं और वो इकोनॉमिकली इतने साउंड भी नहीं हैं. मैंने जैसे आपको जीरे का एग्जाम्पल बताया था. मैं बाड़मेर गई थी, वहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा थी, जैसे गाँव की एक बूढ़ी, मैं उनसे बात कर रही थी. उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने कहा था कि 40 किलो 40 उल्टे में मैडम बहुत फ़र्क है, कौन इसकी भरपाई करेगा. तो मैंने शुरू में एक बात बोली थी, इकोनॉमी हैज़ टेकन ओवर इकोलॉजी. कोई कंट्री ये नहीं चाहती कि उसके देश के लोग भूखे मरे. हम भी तो नहीं चाहेंगे हमारा पड़ोसी भूखा मरे. तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा. अभी मैं तिजारा गई थी, तो फार्मर्स क्या करते हैं कि जो बीज होता है उसको पेस्टिसाइड लगा देते हैं. मेरे सामने यहाँ पे दीमक का बहुत ज़्यादा प्रकोप है अलवर में. एक तगार थी, उसमें 1 किलो उसने बीज डाला, पूरी बॉटल ऑफ ऑल्ड्रिन उसने डाल दी. मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, इसमें तो तुम्हें सिर्फ 2 ड्रॉप डालने थे. कहते नहीं, ज़्यादा डालने से ये होगा कि इसे चिड़िया भी नहीं खाएगी और हमें इसकी रखवाली नहीं करनी पड़ेगी. मतलब उसको इतना जहरीला बना दिया कि उसे चिड़िया भी नहीं खाएगी, और उससे जो पेड़ उगेगा, उससे जो धान उगेगा, उससे जो बाजरा उगेगा, जिससे जो पेड़ उगेंगे, या उससे जो हमारी दालें उगेंगी, वो हम खाएंगे. बताइए.
ऐसे एक मैं अभी इधर गई थी मुडावर के पास, तो 2 तरह की क्यारियाँ बना रखी थी। तो मैंने उनसे पूछा भाई ये 2 क्यारियाँ क्यों बना रखी हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई एक घर के लिए और एक बाजार के लिए। दे वर ग्रोइंग लेडी फिंगर्स, भिंडी का बाग था वो। तो मैंने कहा अच्छा इसमें क्या फ़र्क है? तो बोले इसमें हम दवाई डालते हैं जो बाजार में बेचते हैं, और घर वाली में दवाई नहीं डालते। मैंने कहा क्यों? बोले दवाई से शरीर खराब होता है। तो मैंने कहा ये तो बहुत गलत बात है, तुम जहर उगा के बाजार में बेचने जा रहे हो, लोगों को मार रहे हो। कहते क्या करें, यहाँ तो फसल आधी भी नहीं होगी और यहाँ 6-8 किलो ज़्यादा हो जाएगी। So these kind of things are growing up in our farmers, but that innocent fellow doesn't know कि धरती तो वही है, पानी तो वही है, तो इधर डाल दो बह के इधर आ जाएगा, फर्क 10% का भी नहीं पड़ेगा। बट उसने अपना दिमाग लगाया कि मैं अपने घर वालों के लिए तो बिना दवाई का उगा लेता हूँ और बाजार में दवाई वाला बेचती हूँ। तो दिस थिंग शुड बी स्टॉप, अवेयरनेस। हाउ सी फार्मर्स डोंट इवन नो व्हाट दे आर डीलिंग विद। मैंने आपको वीडियो दिखाया था, दे डोंट इवन नो कि किस तरह के जहर से वो लोग खेल रहे हैं। These are, see, we people are very, we go to the villages, we make farmers aware, क्योंकि हमारी इस रिसर्च का मतलब ही ये है कि हम लोगों को पेस्टिसाइड के बारे में बताएं, इनके हार्मफुल इफेक्ट के बारे में बताएं और इसकी यूज़ को कंट्रोल करें किसी न किसी तरह से। नहीं तो वो समय दूर नहीं है जब बच्चे पैदा होने ही बंद हो जाएंगे, हमारे भी और पक्षियों के भी और जानवरों के भी। हमने करीब 18-19 इंटरनेशनल इवेंट्स किए हैं, जिसमें हमने स्कूल स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, इंटरनेशनली बहुत लोगों को जुड़ा, फार्मर्स को बुलाया, उनको अवेयर किया कि हाउ पेस्टिसाइड्स आर हार्मफुल, आप उसका यूज़ का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कैसे आपको सेफ्टी प्रोसीजर्स को यूज़ करना है। These are the certain events which we have conducted. We have done 7 patents with the Government of India, on which one of the patent is this. इसको हम कमर्शलाइज करने वाले हैं बहुत जल्दी। हमने एक ऐसी मशीन बनाई है, डिज़ाइन करी है, जिसमें फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड दोनों का मापक फिक्स है। उसमें उसे मिला के फार्मर्स उसको यूज़ कर सकते हैं, उन्हें नापने की ज़रूरत नहीं, बस उसमें उसको डालना है, वो अपने आप उतना जितना ज़रूरत है उतना लेके मिक्स करके स्प्रे कर देगी। इस तरह का भी काम हम कर रहे हैं। I have written 30 books all on this pesticide contamination. I want people to aware. They all are here at Amazon. These are our latest publications. This is my laboratory. This is my team. These are where we work and we report all what I talk to. देखिए हमारा जो काम है वो बहुत महंगा काम है। हमारा एक सैंपल 50,000 रुपये लगते हैं उसके एक्सट्रैक्शन होने में। तो हमें अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलेगी तो हम इस काम को नहीं कर सकते। तो जो फाइनेंशियल असिस्टेंस इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हमें दिया, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2.0 राजस्थान सरकार ने हमें दिया, हम उसे ग्रेटफुली एक्नॉलेज करते हैं। मैं इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत थैंक यू देती हूँ कि दे गेव मी चांस टू स्पीक हियर। It was wonderful to be present here and talk about something which we all should know. I would like to thank Dr. Bajrang Singh Rathore ji. Thank you so much, sir. Sir, you have been my mentor for long. Thank you so much for getting me here. Thank you so much, ma'am. There is one thing which I want to say, that this line, that welcome to the world of pesticide. I don't know how many days or how many months this line will echo in my mind. Seriously, your session was really it's very informative. It's like eye-opening session. I should say this is an alarming session for all of us. And really the kind of knowledge which you have shared with us, like the exposure of pesticides on humanity, especially women, is really very informative. I was just listening each and every word which you are speaking here.
Thank you so I don't much. know how these minutes, have been passed, but it's very impactful session. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. It was my pleasure to be here. Yeah, for us, ma'am, that you have come here and you have accepted our invitation and you are sharing this, this insightful research with us. It's really very enlightening session. It's wonderful. Yes. Over to you, sir. Would you like to say something, Bajrang sir? ममता जी, आपने बहुत ही कुछ पेस्टिसाइड के बारे में जो सूचनाएं दी है बड़ी आई ओपनिंग है, और हम सभी को उसके बारे में सावचेत रहना होगा, जिससे कि आगे वाली जनरेशन जो है उसको इसका फायदा मिल सके। अपने सेमिनार के लिए जो समय निकाला, हम हृदय से आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, और जब कभी भी और आपको मौका मिले तो निश्चित रूप से आप आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के, एंड थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी हियर. It was just pleasure talking to all of you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Over to you, Soumya. Thank you, Dr. Mamta Sharma ma'am, for that enlightenment session. Your insights have opened our eyes to the hidden dangers of pesticide pollution and how it disproportionately affects our health. Awareness is the first step towards change, and we truly appreciate your contribution, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Any questions from the audience? Dia. Yes, Dia, please. Yes, ma'am. Yeah. Good afternoon, ma'am. Good First afternoon. of all, myself, Dia. I'm from BSc Honors Agriculture. Great. Ma'am, today's session was really very amazing, as we have taken very seminar before. But first time I preferably myself listen a seminar, every line of the seminar, what you have said, every word that echo in my mind, same as Tripti Soni ma'am. So ma'am, you have told us such an important topic, showed us such shocking, horrible data. Ma'am, as we all know that our population is increasing, Yes. so everyone also need to eat and feed. But organic farming is something, or the very much alternatives you also told, like intense farming intensification, sorry, system farming intensification, and much more. But ma'am, it cannot be done on such a large scale in this population. So ma'am, what I want to ask, that if we will aware any farmer, so he will just say कि मुझे भी तो पैसे कमाने हैं, and line something like that. So what we can do in that situation, that farmer needs the money, and for for production, they will use the pesticides and they are killing us. So ma'am, something for this. थैंक यू सो मच दिया, तुमने खुद ही अपने जवाब खुद ही दे लिया तुमने. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जैसा मैंने तुम्हें कहा था कि नो कंट्री विल वांट कि उसके लोग भूखे मरे. हम अपने पड़ोसी को भूखा नहीं देख सकते. फार्मर्स आर इलिटरेट, दे आर पुअर, दे आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड इन केस ऑफ इंडिया एंड अदर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. सो हम उस लेवल पे हम इसको नहीं रोक पाएंगे. हमें जुडिशियरी को हेल्प करके पेस्टिसाइड्स के यूज़ को रोकना होगा. फार्मर्स को इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करना होगा, तभी जाके कुछ चेंजेस आएंगे. क्योंकि मैं तो बहुत फार्मर्स के पास जाती हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ, हालत बहुत ख़राब है. जो दिखाई उससे कहीं ज़्यादा ख़राब है. चाहे फार्मर 2 बीघा में काम कर रहा है, चाहे 1 बीघा में काम कर रहा है, चाहे 10 बीघा में काम कर रहा है, कोई भी पेस्टिसाइड डाला जा तो मदर नेचर में ही रहा है वो एट द एंड ऑफ द डे. सो दिस इज अ नॉक्शियस सर्कल. इसे कहीं पे हमें रोकना पड़ेगा सरकार की सहायता से. दैट इज इट. एंड सेकेंडली, या बोलो. But I also want to say one more thing, कि मैम जैसे कि हमारा अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करते हैं, तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव वेरी ब्यूटीफुल लॉज और सब Yes. कुछ है हमारे पास. बट अलॉन्ग विद दिस फिर भी वो इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है, जिस वजह से हम लोग कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही अच्छा नहीं है. बट वी हैव अ ग्रेट लॉज, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं. सो सेम इन एग्रीकल्चर फील्ड मैम, कि हम लोग इतने बड़े लेवल पे हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस, कि हम लोग यूज़ को बिल्कुल तो हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं. We can only take a initiative.
सो मैम इसे मतलब कोई जनरल अवेयरनेस हम कुछ इस तरीके से कि इफेक्टिव वे में कर सकें जो फार्मर भी समझे, और जुडिशरी की तो मैम यू से वेरी राइट कि हमें हम कर सकते हैं, पर मैम आई हैव अ डाउट कि हम इसे एक बेसिक लेवल पे, एक लोकल लेवल पे, या फिर जो हमारे जो लोकल फार्मर्स हैं उन तक कैसे इस अवेयरनेस को, इस इनिशिएटिव को पहुंचा सकते हैं, बिकॉज दे विल नेवर टेक अ जूम मीटिंग, दे विल Three नेवर things. टेक अ Three things. यस One is think locally, think globally, work locally. जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं दिया हमें करना चाहिए. दूसरा जुडिशरी ने तो ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड 90 में बैन कर दिए. उसने कहा एग्रीकल्चर में आप यूज नहीं करोगे, पब्लिक हेल्थ में यूज करोगे, पर वी पीपल वी गो, लाइक वी मीन्स फार्मर्स, वी गो, वी बाय DDT एंड वी पुट इन द फील्ड. जबकि उनको पता है कि ये बैंड है, वो झूठ बोल के लेके आते हैं क्योंकि उसकी इफेक्टिविटी दूसरे जो महंगे पेस्टिसाइड्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो DDT के रिप्लेसमेंट में पेस्टिसाइड्स आए थे दे आर वेरी कॉस्टली. ओके, तो ये हो गया. तीसरी चीज, हम लोग वी पीपल, वी कॉमन पीपल, हम ऑर्गेनिक के नाम पे जो दाल 80 रुपए की आधा किलो, हम 180 ऑर्गेनिक इंडिया की खरीदते कि नहीं खरीदते? करेक्ट मैम. तो ऑल दीज थ्री थिंग्स दे आर गोइंग हैंड इन हैंड. सो दिस सर्किल हैज टू बी स्टॉप्ड समवेयर. It's an involvement of judiciary, it's an involvement of we common people, it's an involvement of the farmers, then only things will be improved. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Diya. Next, we have with us Dr. Ruchi Soni, ma'am.